بارے میں سیکھیں گے پولوس رسول کے مطابق وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے خاص ہے, موسٹ امپورٹنٹ ڈاکٹرن, مطلب فرسٹ امپورٹنس جو رکھتی ہے. ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. جسٹ سو یو نو کہ یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں سب سے جو پاورفل اور فیمس اسکرپچر ہے وہ پال نے پہلا کرنتھیوں 15 کا پورا چیپٹر اگر آپ پڑھیں تو یو ول نو واٹ ہی ٹاکس اباؤٹ. اس میں وہ یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں باتیں ہیں, ہماری نئی زندگی ریزوریکشن کے بارے میں باتیں ہیں. تو آج ہم اسی میں سے تھوڑا سیکھیں گے. پہلے پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں 15 باب 3 آیت. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. آپ نے ادھر نوٹس کیا ہوگا, ادھر لکھا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے فرسٹ امپورٹنس, سب سے پہلے مطلب جو سب سے زیادہ پال کے نزدیک ایک اہمیت رکھتی ہے وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں پال. تو کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے, چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی. اب دوبارہ یہ پڑھیے پلیز ڈیڈ, سیم اسکرپچر پہلا کرنتھیوں. ٹھیک ہے. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. بس کافی ہے. کس کے مطابق گناہوں کے لیے ہوا؟ کتاب مقدس کے مطابق. سو فرسٹ امپورٹنس پال کہہ رہے ہیں, میں آپ کو سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ ڈاکٹرن ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے انہوں نے گناہ اٹھا, وہ جی اٹھے. ابھی کون سی کتاب مقدس کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ تو اس ٹائم پہ لکھا نہیں گیا نا, نیا عہد نامہ تو لکھا ہی نہیں گیا اس ٹائم تک. وہ تو 2/3 آف دا نیو ٹیسٹمنٹ پال از گوئنگ ٹو رائٹ, وہ تو لکھا جا, پال نے کافی زیادہ اس کا حصہ لکھ دینا تھا. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کس کی بات ہو رہی ہے, کون سے اسکرپچرس کی بات ہو رہی ہے کہ اس بابت لکھا گیا تھا. ابھی آپ نے جیزس مووی میں دیکھا یسوع نے کیا کہا کہ میرے بابت جو لکھا گیا تھا وہ پورا ہونا تھا. What is he talking about? Old Testament, that's right. پرانا عہد نامہ جو خدا کے بارے میں لکھا گیا تھا. اب ہم تھوڑا آگے پڑھیں گے, اگلی ورس میں چلیں گے. Jump to verse 4 please. First Corinthians 15 verse 4. اور 14 next. یہی ہے verse 4. اوکے. اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. یہ کس کے مطابق جی اٹھا؟ جی اٹھنا بھی کس کے مطابق لکھا ہے؟ کتاب مقدس کے مطابق. اب بار بار پال کا یہ ریفرنس دینا کہ کتاب مقدس کے وائز بیکاز آف دا اسکرپچرز, جیسے اسکرپچرز میں لکھا ہے یسوع دفن ہوئے جی اٹھے, ہمارے گناہوں کے لیے انہوں نے جان دی. بار بار یہ ریفرنس لے رہے ہیں. اس کا مطلب there's gotta be references یا کلام کے پرانے عہد نامے میں یہ باتیں کہی گئی ہیں. تو آج ہم تھوڑا ڈیکوڈ کریں, تھوڑا ڈھونڈیں وہ باتیں پرانے عہد نامہ میں جہاں یسوع مسیح کے مرنے, کراس پہ چڑھنے اور جی اٹھنے کے بارے میں بات کی گئی ہے. پرانے عہد نامے سے ہم تھوڑا سیکھیں, ڈھونڈیں ان اسکرپچرس کو, کیونکہ پال کہہ رہے ہیں کہ جو لکھا گیا تھا کہ یسوع کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا, یہ فرسٹ امپورٹنس کی بات ہے. اب یسوع کی پیدائش کے بارے میں کس کس کو پتہ ہے یہ پروفیسیز ہوئی تھی, پیشن گوئیاں ہوئی تھی؟ وہ آپ میں سے اگر میں ہاتھ اٹھواؤں 3-4 پروفیسیز سب بول دیں گے. چلے ایکٹی لمنا آپ کا ہاتھ آلریڈی اٹھ گیا تھا. کوئی یسوع کی برتھ کے بارے میں بتائے جو پیشن گوئی ہوئی ہو پرانے عہد نامہ میں, اور ایون اینی ون ایلس ٹو, کوئی اور بتانا چاہے یسوع کی پیدائش کے بارے میں. ہاں جی. آمین. برتھ کے بارے میں, یسوع کی پیدائش کے بارے میں ہمیں کافی پیشن گوئیاں پتہ ہیں. ٹھیک ہے آنٹی لمنا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ انہوں نے بول دیا. اچھا, اینی ون ایلس, کسی کو جی بولیے پلیز. سب کو کچھ نہیں. ہاں جی مجھے سمجھ آ گیا, پیدائش کی کتاب میں جو پروفیسی ہوئی ہے
کے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک کہ اٹس اے گڈ ٹائم. اب یہ اچھا وقت ہے کہ ہم یسوع کی ان پیشن گوئیوں کے بارے میں سیکھیں, یا اگر آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے تو ایز اے ریمائنڈر ہم دہرائیں ان چیزوں کو جو کلام مقدس میں یسوع کی موت کے بارے میں اور جی اٹھنے کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن پال سیز اٹس فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ, سب سے پہلے یہ بات کی گئی. تو ابھی ہم پہلے تھوڑا سا اس بات کو اسٹڈی کریں گے. لیٹس جمپ ٹو ورس 13 and 14. For if there is no resurrection. آپ اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ. So basically, if you take resurrection out of the story, اگر آپ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو سٹوری سے نکال دیں تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے. پھر تو باقی معبودوں کی طرح وہ بھی قبر میں ہے. What sets us apart? ہمیں کیا دوسروں سے مختلف کرتا ہے؟ We serve a risen Savior. ہمارا یسوع زندہ ہے. جیسے ایوب نے کہا My Redeemer lives. میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. So what sets us apart? ہمیں کیا دوسروں سے مختلف کرتا ہے کہ our Savior is alive forevermore. ہمارا جو مخلصی دینے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے. اسی ہم تھوڑا آہستہ آہستہ پہلا کرنتھیوں 15 باب کو ہی اسٹڈی کر رہے ہیں. اب 20ویں اور سے 22ویں آیت تک پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں 15 باب 20ویں سے 22ویں تک. لیکن پھر واقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی اور آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی ہوئی, اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. Hallelujah. Hallelujah. That's the hope of every believer. مسیح پہ ایمان لانے والے ہر ایماندار کی یہی امید ہے کہ there is a resurrection, کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے, اس کے ہمارا جی اٹھنا ہے. کیونکہ اگر ہم آگے پڑھیں اسی ہم پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے, اگر میں انسان کی طرح افسس میں درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ؟ اگر مردے نہ جلائے جائیں گے تو آپ کھائیں پیئیں, کیونکہ کل تو مر ہی جائیں گے. اگر جی اٹھنا نہیں تو let's just have fun, پارٹی, مزہ کرے. صرف اگر ہماری صرف مخلصی اس دنیا تک محدود ہوتی تو پھر جیسے مرضی جیے, ہم نے کون سا دوبارہ جی اٹھنا ہے؟ پھر what's the point? کیا تو مین سٹوری ہماری جو خداوند پہ ایمان لانے کا one of the main things پال کے مطابق امپورٹنٹ تھے, پالوس رسول کے مطابق ایک خاص چیز وہ یسوع کا جی اٹھنا ہے. ہاللویا. اور یسوع جی اٹھے ہم سب جانتے ہیں, اور خداوند کا ہمیشہ سے یہی پلان تھا, ہمیشہ کی زندگی. کیا پلان تھا؟ ہمیشہ کی زندگی. جو اس دنیا میں ہماری لائف آن دی ارتھ, جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری لائف ہے وہ ایک نقطے کے برابر, اٹس لائک اے ڈاٹ, اور ایٹرنیٹی از فار ایور. اور جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے دیٹ نیور اینڈز, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو سم ٹائمز ہم اس نقطے والی لائف پہ اتنا فوکس ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے نہیں کہ آگے کیا ہوگا. اگر ریزوریکشن نہیں, اگر یسوع کا جی اٹھنا یا ہمارا جی اٹھنا ہماری ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے تو پھر ہم لوگ تو جیسے مرضی جیے نا. یسوع نے کیوں کہا بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بنا, کیوں شاگرد بنا, کیا فائدہ, سب ایسے ہی مزہ کریں. سو دس از وائی ایم سیئنگ اگر ریزوریکشن کو, اگر یسوع کے جی اٹھنے کو ہم سٹوری سے ہی نکال دیں تو پالوس رسول کے مطابق ہمارا ایمان بے فائدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک فیمس آیت ہے, میں ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں کہ میری بھی فیوریٹ ہے, یوحنا 3:16 آیت ہے. ہمیشہ پوچھتی ہوں اب تو سب کو زبانی یاد آپ ہو گئی ہوگی. جی آئیے اکٹھے پڑھتے ہیں. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. کون سی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی زندگی. سو فرام دا ویری بگننگ, شروع سے ہی خداوند کا پلان ہمارے لیے کیا تھا؟ ہمیشہ کی زندگی کا. اب ہم تھوڑا سا اور اسٹڈی کرتے ہوئے یوحنا کی کتاب 20واں باب 9ویں آیت پڑھیں گے.
लिखा है क्योंकि वो अब तक उस रिश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। वो इतनी देर तक ये शागिर्दों के बारे में बात हो रही है, यीशु के साथ रहते रहे, यीशु ने इतनी दफा कोट किया, मतलब उस बात को यूज किया कि मेरा कलाम के मुताबिक मरना, दुख हटाना, जी उठना होना ही होना है, फिर भी उन्होंने यकीन ना किया। What about us? हमारी क्या, हम लोग यकीन कर रहे हैं, शायद आप जी उठने के बारे में यकीन कर रहे हो, लेकिन what about रैप्चर? अगर तो आप सिर्फ यीशु की पैदाइश के बारे में यकीन रखते हैं कि नविश्ते पूरे हुए, यीशु की रेजरेक्शन के बारे में यकीन रखते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे, लेकिन ये अगर आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिससे आपको ये नजर आए कि कोई इसके बाद है नहीं, यीशु नहीं आने वाला, तो क्या फायदा? व्हाट मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप खुदावंद से दूर हैं, खुदावंद के साथ नहीं चल रहे, खुदा आपने तौबा नहीं किया, अपना दिल खुदावंद को नहीं दिया, तो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं कि नविश्ता नहीं पूरा होना, यीशु ने हमें लेने नहीं आना, जो कलाम मुकद्दस में लिखा है वो नहीं पूरा होना। अब अगर पेशन गोलियां यीशु की पैदाइश के बारे में पूरी हुई, यीशु के मरने के बारे में पूरी हुई, जी उठने के बारे में पूरी हुई, तो आपको क्या लगता है उनके वापस कलीसिया को लेके जाने के बारे में नहीं पूरी होगी? जो मुकाशफों की किताब में इतना कुछ लिखा है कि कलीसिया का उठाए जाना, मुखालिफ मसीह का आना, वो सब होना, वो पूरा नहीं होगा? क्योंकि अगर वो सब नहीं पूरा होता जो पहले लिखा था, तब हम डाउट कर सकते थे, लेकिन वो सब जो यीशु के बारे में लिखा गया सब पूरा हुआ, तो जान ले यीशु आने वाले हैं। Are you ready to meet the Lord? यीशु आने वाले, क्या आप तैयार हैं उनको मिलने के लिए? आप अपने दिलों में साथ साथ चेक करें कि खुदावंद अगर वो बातें पूरी हुई थी, and if I were to die today, अगर मैं आज ही खुदावंद मेरी किसी भी वजह से डेथ हो जाए, am I ready to meet you? कि मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ? जब मैं मैसेज दे रही हूँ आप इस बारे में सोचें। हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। यीशु ने अपने डिसाइपल्स को भी काफ़ी दफ़ा बताया, अपने शागिर्दों को भी काफ़ी दफ़ा बताया कि उनका मरना ज़रूरी है। अब हम इसी के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। मत्ती की किताब के 12वां बाब की 40 आयत पढ़ेंगे जी। मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और 40वीं आयत। क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। ये क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? जीसस इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ। यीशु अपने आप को उस स्टोरी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस स्टोरी से अपने आप को ताल्लुक करा रहे हैं कि मेरे साथ भी यही होना है। बार बार यीशु ने बातें की। इधर यीशु क्या कोट कर रहे हैं? यीशु किस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं? पुराने अहदनामे की यूना नबी की कहानी के बारे में। अब सबसे फेमस जो सबको पता है, कहाँ यीशु मसीह के दुख उठाने के बारे में लिखा है पुराने अहदनामे में? यसाया 53 बाब। हम थोड़ा स्टडी कर लेंगे यसाया 53 बाब को। चले हम वर्स 10 से पढ़ेंगे। आइज़ाया 53 जस्ट वर्स 10। यसाया 53 बाब 10वीं आयत। If anyone has किसी को मिल गया तो पढ़ दे। यसाया की किताब 53 बाब 10वीं आयत। मुझे मिल गया। ओके प्लीज गो अहेड। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुनाह की कुर्बानी, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी। ओल्ड टेस्टमेंट में गुनाह की कुर्बानी कैसे होती थी? खून बहा के। इधर क्या बात हो रही है? जब उसकी जान की कुर्बानी। किसके बारे में बात हो रही है? यीशु मसीह के बारे में। आपको पता है ये कब लिखी गई? यसाया नबी की किताब यीशु की बर्थ से कितने साल पहले? 700 साल पहले। 700 साल पहले यीशु का एक कुर्बानी बनना, गुनाह की कुर्बानी बनना, ये पहले लिख दिया। यसाया ने यीशु की बर्थ के
पाखरू ने यसाया से लिखवाया कि यीशु हमारी गुनाहों की कुर्बानी बनेंगे। आगे पढ़े प्लीज डैड। 11वीं आयत यसाया 11। नहीं 10 कोई गुनाह की कुर्बानी के बाद। ओके 10वीं आयत से पढ़ूंगा। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। बस अपनी नस्ल को देखेगा। कुर्बान हो गई एक चीज तो नस्ल कहाँ से देखेगी? एक चीज कुर्बान हो गई है, आगे मतलब इट्स डेड, मौत हो चुकी है, आगे नस्ल कैसे देखेगी? अनलेस देयर इज अ रेजरेक्शन। तो हमने शायद कभी गौर से नहीं देखा, इधर यीशु की मौत और जी उठने के बारे में बात है। नस्ल कैसे होगी? यही होगा ना कि वो जिंदा होगा तो नस्ल होगी, ऐसा ही है ना? चलिए लेट्स जंप टू वर्स 11 प्लीज। अच्छा जी। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। और 11वीं आयत, अपनी जान ही का दुख उठाकर, प्लीज वेट करें, अपनी जान ही का दुख उठा के, what is Isaiah talking about? अपनी जान ही का दुख उठा के, after he has suffered, ये क्रॉस की बात हो रही है, याद रखना है। यसाया 53 की जब आप पढ़ते हैं ना 53 बाब, उसको भी गौर से पढ़ा करें। हम मसीह के नाम में पैदा हुए हैं, हम लोग को ये जुबानी ऐसी चीज़ें याद हैं, हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं बगैर रुके सोचे कि यह बात क्या हो रही है। इधर आफ्टर, इंग्लिश में लिखा है आफ्टर ही हैज सफर्ड, ये क्रॉस की बात हो रही है। दोबारा रेडी, अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा। प्लीज स्टॉप, वो उसे देखेगा। अब जान कुर्बान होगी, किसको देखने की बात हो रही है? इंग्लिश में लिखा ही विल सी द लाइट। अब एक चीज डेड है, वो लाइट कैसे देखेगी? अनलेस देयर इज अ रेजरेक्शन। एक बंदा मरा, जी उठा, तभी तो वो लाइट देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। चले वी कैन गो टू नाउ। अब थोड़ा सा और पढ़ लें। अभी ये हमने क्या पढ़ा किस बारे में? कि यीशु की क्रॉस में यीशु का दुख उठाना और यीशु का जी उठना। अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 1000 साल पहले। ये यीशु की बर्थ से 700 साल पहले की बात है। अब थोड़ा 1000 साल दूर चले जाएं बर्थ से। हम ज़बूर से कुछ पढ़ लेते हैं। ज़बूर 16 उसकी 9वीं 10वीं आयत। ज़बूर 16 9वीं 10वीं आयत। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, मेरा जिस्म भी अमनो मान में रहेगा। वेट प्लीज, मेरा जिस्म अमनो मान में रहेगा। माई बॉडी रेस्ट्स इन सेफ्टी। ये कब की बात हो रही है? जिस्म की बात हो रही है, कब्र की बात हो रही है। ये यीशु के कब्र में रहने की बात हो रही है। डेविड अपनी बात नहीं कर रहा, दाऊद अपनी बात नहीं कर रहा, ये मसीहा की बारे में बात हो रही है। अगर आप आगे पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि दाऊद अपने बारे में नहीं बात कर रहा। माई बॉडी रेस्ट इन सेफ्टी, मेरा जिस्म अमनो मान में रहेगा, अमनो मान में रहेगा। ये ग्रेव की बात हो रही है, कब्र की बात हो रही है। यीशु का मरने के बाद जो कब्र में रहना, उसकी बात हो रही है। आगे चले प्लीज। क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा और ना अपने मक़दस को सड़ने देगा। अपने मक़दस को सड़ने देगा। सड़ना कब शुरू होता है किसी को पता है? जब इंसान की डेथ होती है। सड़ने वाला पॉइंट कब आता है? रॉटिंग, डिके, ये पॉइंट कब आता है? मेडिकली किसी को आइडिया हो? मेडिकल वाले फिल्मों आपको पहले ही बता दिया था मैंने। यू नॉट अलाउड। किसी और को पता है? आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है। इधर अगर आप डिकोड करें स्क्रिप्चर को, क्या कहा जा रहा है कि मसीहा होली वन 3 दिन से ज्यादा कब्र में नहीं रहेंगे। साइंस के मुताबिक जो रॉटिंग होती है, जो सड़ना शुरू होता है, प्रोसेस तो मरते साथ ही कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीजें होना शुरू होती हैं, लेकिन जो सड़ने वाला पॉइंट होता है ना, वो 3 दिन के बाद होता है। तो 1000 साल पहले बात हो गई कि भाई उसकी बॉडी में सड़ने वाला पॉइंट देखना ही नहीं, हालेलुया, रेस्ट करनी है कब्र में बेस। हालेलुया, तालियां हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगली आयत पढ़ें प्लीज स्टैंड। Psalm 16 verse 11। जी, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है।
दाहिने हाथ से कुछ ज़हन में आ रहा है? यीशु बाप के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लेट्स गो फास्ट फॉरवर्ड। 500 साल पहले की बात देख लें, यीशु की बर्थ से 500 साल पहले की बात देख लें। अब हमने क्या सीख लिया कि यसाया 53 के मुताबिक यीशु का दुख उठाना क्रॉस पे, उनका जी उठने के बारे में भी, फिर हमने ज़बूर से भी सीख लिया। अब सबको पता है, मैंने तो सिर्फ 2 कोट किए हैं, आपकी बाइबल भरी पड़ी है अगर आप स्टडी करना शुरू करें यीशु के मरने के बारे में, जी उठने के बारे में, बर्थ के बारे में, तो पैदाइश के बारे में तो आप सबको वैसे ही जुबानी रटे हुए हैं, हर क्रिसमस पे टैबलोज वगैरह होता है, आपको याद है। तो अभी हमने थोड़ा सा सीखा, लेकिन आपकी बाइबल में बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं, आयतें हैं, आयात हैं जहाँ ये लिखा हुआ है। अब हमें यीशु की बर्थ का भी पता चल गया, लाइफ का भी पता चल गया, रेजरेक्शन का भी पता चल गया, जी उठने के बारे में पता चल गया। आपको पता है 40 दिन के बाद यीशु आसमान पर चले गए जी उठने के, इसे इंग्लिश में असेंशन कहते हैं, यीशु का आसमान पे चले जाना। 40 दिन के बाद गए थे ना, उसके बारे में थोड़ा सा बड़े ऊपर जाके क्या हुआ। यीशु की पैदाइश से 500 साल पहले खुदावन ने दानियल नबी को ये दिखाया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। दानियल 7 बाब 13 से 14 आए। हालेलुया कहने के लिए तैयार हो जाए, मुझे बहुत ही आयत पसंद है। दानियल 7 13 14। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ, एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान, आदमजाद की मानद, सन ऑफ मैन, ये टाइटल यीशु अपने आप को कहते थे बहुत दफा नए नामे में, इब्ने आदम। ये उसकी बात हो रही है। तो दानियल किसके बारे में बात कर रहा है? आदमजाद, यीशु मसीह के बारे में, ये याद रखना है। प्लीज स्टार्ट से दोबारा पढ़ें। और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। ये कौन है कदीमुल अयाम? एंशिएंट ऑफ डेज। ये कौन है? खुदा बाप। इब्ने आदम कदीमुल अयाम तक पहुंचा। सो आफ्टर 40 डेज जब यीशु आसमान पे गए, किससे मिले? कदीमुल अयाम से, एंशिएंट ऑफ डेज। प्लीज गो अहेड, कंटिन्यू। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि वो सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती न रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जब पैदाइश हुई थी ना, तभी कह दिया था ऑफ हिज किंगडम देयर शैल बी नो एंड, कि उसकी बादशाहत की कोई एंड नहीं होगी। आप देख लें कितने बड़े बड़ी चीजें आई, प्रेसिडेंट ट्रंप तक ही इज नो लॉन्गर इन अथॉरिटी, इमरान खान अभी नहीं है फिलहाल। सब चीजें शेकेबल है, सब चीजें किंगडम शेकेबल है। कौन हमेशा तक किंगडम करेंगे? यीशु मसीह। अब कितने साल पहले ये बात की गई? 500 साल पहले। हालेलुया। चलिए अब आप लोग का टेस्ट है थोड़ा बहुत। सारे चर्च में आते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। ये हम सीख रहे हैं कि यीशु ने, पौलुस रसूल ने पहला कुरिन्थियों के 15वें बाब में कहा कि जस्ट एज स्क्रिप्चर से, जैसा कलाम में लिखा गया वो होना था और वो हुआ। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हम वो बातें देख रहे हैं कि पौलुस किसके बारे में बात कर रहा है ओल्ड टेस्टमेंट में, तो वो हमने थोड़ी बहुत सीखी। अब आप मुझे बताएं, मैं थोड़े आपको हिंट्स भी देती हूँ। नए अहदनामे की एक स्टोरी है, नए अहदनामे की एक स्टोरी है जहाँ एक खुदा के खादम ने दूसरे बंदे को यीशु के पास लाए, लेड हिम टू द लॉर्ड, यीशु की नजात के बारे में बताया और ओल्ड टेस्टमेंट से समझाया। वैसे तो सभी ने, उस टाइम तो न्यू टेस्टमेंट था ही नहीं, सभी ने ऐसा किया, लेकिन एक बंदे की स्पेसिफिक स्टोरी है कि एक बंदा, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आपको पता चल जाएगा, टेस्ट नहीं रहेगा। चलिए सोचें, क्वेश्चन समझ आ गया? न्यू टेस्टमेंट का बंदा, मैं सवाल समझा दूं। ठीक है। हनी ये कह रही है कि नए अहदनामे में एक स्टोरी ऐसी है जिसमें एक खुदा का खादम किसी गुनहगार को मसीह के पास लाया, पुराने अहदनामे का वाकया सुनाते। पुराने अहदनामे से ये समझा कर के मसीह ही जिसका हम वेट कर रहे हैं, ये वो है यीशु मसीह। सोचे सोचे, गिव मी 2 मिनट्स। नहीं आपको मैंने बता दिया। Yes, that's right. हम
बंदा, उर्दू में क्या कहते हैं, फिलिपस, वो जा रहा होता है, खुदा उसको ले जाते हैं एक जगह पे और वहाँ वो देखते हैं एक चैरियट। ये स्टोरी आप उर्दू में समझाएं अच्छे तरीके से। फिलिपस को खुदा का पाखरू जो है वो ले गया, वो भाग कर गया और उसने देखा कि एक आदमी जो है वो अपने रथ के ऊपर जा रहा है, चैरियट के ऊपर जा रहा है, और वो भागता हुआ उसके पास पहुंचा और वो कुछ पढ़ रहा था। और फिलिपस ने उससे कहा, क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझता भी है? फिलिपस ने उससे पूछा, क्या जो तू पढ़ रहा है उसे समझता भी है? तो उसने कहा, जब तक कोई समझाए नहीं मैं कैसे समझ सकता हूँ। वो क्या पढ़ रहा था, ये किसी को याद है? यसाया की किताब में से पढ़ रहा था। तो यसाया 53 बल्कि पढ़ रहा था। हाँ जी, 53। यसाया 53 बाब ही पढ़ रहा था। तो फिलिपस ने यसाया 53 बाब में से, जैसे मैंने आपको बेसिकली डीकोड करके बताया, मैंने आपको बताया ये लिखा है, फिलिपस ने ऐसे ही हबशी ख्वाजा को सारा बताया कि भाई ये जो यीशु मसीह है इसके बारे में पहले से लिखा और यही वो यीशु है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और वो बंदा खुदावंद पे ईमान ले आया। हालेलुया, 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 हैप्पी ईस्टर। सेम टू यू। अब मजा आ रहा है ना कहने का, वी सर्व अ रिजन सेवियर। अब I want you all to close your eyes. अपनी सब प्लीज आंखें बंद करें, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें। यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक इस दुनिया में आए। यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक दुख उठाया उन्होंने, क्रॉस पे जान दी, तीसरे दिन जी उठे। अब यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक अपनी कलीसिया को लेने आने वाले हैं। कलीसिया को, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया वो लोग हैं जो राइट स्टैंडिंग विद द लॉर्ड में हैं, जो रास्तबाजी में जी रहे हैं, जिनका खुदावन के साथ कनेक्शन है। जैसे पहले वाले नविश्ते पूरे हुए, ये भी पूरा होगा और ये कभी भी हो सकता है। यीशु इस सेकंड भी आ सकते हैं अपनी कलीसिया को लेने। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अपने दिल में झांकें। अगर आपके दिल में कोई गुनाह है, कोई आपने कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको खुदावत से दूर करती है, टोटली सरेंडर खुदावत को करने से दूर रखती है, खुदावत को मुकम्मल अपना दिल देने से रोकती है, आज ही डे एट जीसस फीट खुदावत को दे दें। खुदावत आपसे प्यार करते हैं, खुदावत सबकी तौबा तक नौबत चाहते हैं। वो नहीं चाहते कोई हलाक हो, वो चाहते हैं कि हम सब हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। इफ़ यू वर टू डाई टुडे, अगर आप आज खुदा न खास्ता की डेथ हो जाती है, आर यू रेडी टू मीट द लॉर्ड? डू यू नो वेयर यू स्पेंड इटर्निटी? क्या आपको पता है आप हमेशा की ज़िंदगी कहाँ गुजारेंगे? मसीह के साथ या हेल में? खुदावन का आपकी लाइफ के लिए एक प्लान, एक पर्पस है, एक मंसूबा, एक प्लान है। और जैसे नविश्ते दूसरे पूरे हुए, यीशु जल्द आने वाले हैं। अपने आप को तैयार करें। बाइबल में लिखा है, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, मेरे आगे कोई दूसरा माबूद ना हो। ऐसा कोई भी इंसान, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी ख्वाहिश, कोई भी हॉबी, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम, कोई भी जॉब, कोई भी चीज़ जो आपको खुदावत से दूर करती है, वो आपका बुत है। और बुतों की पूजा करने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। आज ही तौबा करें। अगर आप मसीह घराने में भी पैदा हुए, आप बाइबल भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन अगर आपने खुदावत को टोटली सरेंडर नहीं किया, खुदावत को अपने पूरे दिल, अपनी जान, अपनी ताकत से, अकल से नहीं दिल दिया, आज तौबा करें, आज भी डेडिकेट करें, क्योंकि नविश्ते पूरे होंगे। कलाम सच्चा है, यीशु की बातें सच्ची हैं, यीशु आने वाले हैं, जल्द आने वाले हैं। अगर आप दुनिया के लोगों को देखेंगे तो आप यही करेंगे, मैं उस जितना बुरा तो नहीं, मैं चोरी तो नहीं करता, मैं डाका तो नहीं डालता, मैं गाली तो नहीं देता, इतना बुरा तो नहीं। आपको हमेशा आप बेटर लगेंगे, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड यीशु मसीह है। हमारी पाकीज़गी का लेवल यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता आप राइट स्टैंडिंग विद द लॉर्ड में हैं, आप खुदावत के साथ सही चल रहे हैं, रास्तबाजी में नहीं चल रहे, तो आज ही खुदावत से माफ़ी मांगे। खुदावत आपसे प्यार करता है। खुदावत से कहें, खुदावत आपके उस कुफारे को जो मैंने गुड फ्राइडे को एंजॉय किया, उसके बारे में सीखा, मैं मांग लेता हूँ, मेरे दिल को पाक करें, मेरे गुनाहों को माफ़ करें, मुझे अपने लहू से धो दें। मैं गुनाहगार हूँ, मैं इकरार करता हूँ मैंने गुनाह किए, मुझे माफ़ करें।
मैं अपने सारे दिल से आपके साथ चलूँगा। आज ही खुदावंद से वादा करें। खुदावंद आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुदावंद का आपकी लाइफ के लिए अजीम पर्पस है। अपनी लाइफ को वेस्ट मत करें। आप लोग दिल में दुआ करें। 2 मिनट में दे रही हूँ, खुदावंद से बातें करें। अगर आपके दिल में किसी के लिए अनफॉरगिवनेस है, खुदावंद ने कहा अगर तुम दूसरों को कसूर माफ नहीं करोगे, खुदावंद भी नहीं करेंगे। हम यही कहते हैं ना, खुदावंद हमारे कसूर माफ कर जैसे तू हमारे कसूर माफ करता है। अगर अनफॉरगिवनेस है किसी के लिए, बिटरनेस है, माफी मांगे, माफी मांगे आज। ऐसी कोई भी बात जो खुदावंद और आपके बीच में है उसे तर्क करते हैं। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी। खुदावंद मैं इन सबको नहीं जानती, खुदावंद आप इनके दिलों को जानते हैं। और खुदावंद आई नो कि आप इनसे प्यार करते हैं। आपकी यही मर्जी है कि आपके साथ चलें, आपके साथ रफाकत करें, पाकरू की स्वीट फ्रेंडशिप, एक जो दोस्ती है उसको एक्सपीरियंस कर सकें। खुदावंद आई प्रे कि आज भी जो लोग बैठे हैं, जो अपने आप को चर्च कहते हैं, कलीसिया कहते हैं, वो पाकीज़गी से आपके साथ चलें। खुदावंद ऐसे ना हो जैसे हम मुकाशवा की किताब में कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनको खुदावंद कहता है मैं इनको मुँह से थूक दूंगा, ना ये हॉट है ना ये कोल्ड है। खुदावंद हमें अपने लिए पैशनेट बनाए, हम पूरा चर्च आपके लिए पैशनेट हो, बिकॉज आई नो खुदावंद आप जल्द आने वाले हैं अपने लोगों के लिए। खुदावंद जितने लोगों ने आज अपने आप को रीडेडिकेट किया, दोबारा से आपको अपना दिल दिया, उनको इस कमिटमेंट में कायम रहने की तौफीक बख्शें। और खुदावंद जिन्होंने पहली दफ़ा आपको दिल दिया, खुदावंद आई प्रे कि वो उनको इतनी बोल्डनेस दें कि वो बाद में आकर शेयर करें कि आज मैंने खुदावंद को अपना दिल दिया है। बिकॉज आई नो कि खुदावंद का कलाम सच्चा है और जैसे वो कलाम के मुताबिक पैदा हुए, उन्हें ज़िंदगी गुजारी, जी उठे, कलाम के मुताबिक वो मुझे लेने आ रहे हैं और मैं रेडी हूँ। खुदावंद काश कि हम सब एक दूसरे से शेयर करने वाले बन सकें, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया।